جی السلام علیکم ناظرین، بریکنگ نیوز ود اون شرازی کی ایک اور اہم ایپیسوڈ میں آپ کا ہوسٹ سید اون شرازی حاضر خدمت۔ ناظرین، سب سے پہلے تو ویلاگ شروع کرنے سے پہلے پوری قوم کو افواج پاکستان کو مبارکباد اس عظیم کارنامے کی جس میں پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان نے بھارتی نہ صرف جنگی طیاروں کو گرایا بلکہ بھارتی پائلٹ ابھینندن کو جو ہے ونگ کمانڈر جو تھا اسے گرفتار بھی کیا، اور پھر پاکستان نے ایک امن پسند قوم ہونے کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے واپس بھی کیا۔ تو اس پہ مبارکباد۔ آج 27 فروری 2 سال مکمل ہو چکے ہیں، اور اب ہم باقاعدہ طور پہ اپنے ویلاگ کی جانب آتے ہیں، اور آج جس موضوع پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سینٹ کا الیکشن۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس میں ڈرامائی تبدیلیاں آتی جا رہی ہیں اور نئی ڈیولپمنٹ ہوتی جا رہی ہے۔ میں نے آپ کو کہا تھا کہ ابھی تو 5-6 دن باقی ہیں، اور ان 6 دنوں میں اس وقت غالباً 26 اور 27 کی درمیان میں نے یہ ویلاگ کیا تھا لاسٹ سینٹ الیکشن کے حوالے سے۔ میں کہا تھا بڑی تبدیلیاں آنی ہیں۔ آصف علی زرداری اگر کوئی کھیل کھیل رہے ہیں تو وہ اپنے بڑے مائنیوٹلی پتے جمع تقسیم کر کے، اور ترپ کے جو پتے ہوتے ہیں وہ سینے سے لگا کے رکھتے ہیں۔ انہیں جو ہے وہ مفاد لینا بھی آتا ہے، مفاد دینا بھی آتا ہے، اور انہیں یہ پتہ ہے کہ کس کا کیا کمزور پہلو ہے۔ جیسے اگر جہانگیر خان ترین کا جہاز جو ہے وہ آزاد امیدواروں کو لے کے بھر کے آتا ہے، تو آصف علی زرداری کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ان کو سیاست میں پی آئی ڈی ہے، اور وہ پی آئی ڈی اب سامنے آ رہی ہے۔ سب سے پہلے تو جو یوسف رضا گیلانی کی موو کھیلی گئی وہ بڑی ان ایکسپیکٹڈ قسم کی موو تھی، اور نہیں خیال کیا جا رہا تھا حکمران جماعت کی جانب سے بھی کہ اس طرح کا ان کے سامنے کوئی ٹف ٹائم آئے گا۔ لیکن آپ ایک اور طرف جائیں، پہلے ادھر چلتے ہیں، پنجاب چلتے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ وہ پی ٹی آئی جو چور ڈاکو لٹیرا کہہ رہی ہے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو، اور عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ جی یہ وہ لوگ ہیں جو بھر کے بیگز دیتے تھے اور فلاں اور فلاں، اس پیپلز پارٹی، اس نون لیگ اور اس تحریک انصاف نے مل کے پنجاب میں سینٹ کے حوالے سے چیزوں کو طے کیا ہے۔ پیپلز پارٹی نے جو ہے وہ اپنے لوگوں کی درخواستیں واپس لی، پی ٹی آئی نے لی، اور اسی انداز میں نون لیگ نے، اور وہاں پہ کوئی پولنگ شولنگ نہیں۔ ابھی تو سپریم کورٹ تو کل فیصلہ دے گا نا اوپن کورٹ کے حوالے سے، منڈے والے دن، یعنی جو ہے وہ یکم کو، لیکن اس میں کہ جی اوپن بیلٹ ہونا چاہیے نہیں، لیکن پنجاب میں طے ہو چکا۔ تو یہ آپ دیکھیں کہ سیاست کی کئی جہتیں ہوتی ہیں، کہاں پہ جو پاکستان پیپلز پارٹی یا نون لیگ تحریک انصاف کو گالیاں دے رہی ہیں، یا جو تحریک انصاف نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو گالیاں دے رہی ہیں، وہ پنجاب میں آرام سے بیٹھ کے انہوں نے فارمولہ طے کیا ہے، اور وہ فارمولہ جی اوکے ہو گیا۔ چودھری برادران نے وہاں پہ بڑی اہم رول ادا کیا، اور پرویز الہی نے جو ہمارے ذرائع بتاتے ہیں تارڑ کے ذریعے جو ہے رابطہ نون لیگ سے کیا، اور ڈائریکٹ طور پہ آصف علی زرداری کو انہوں نے کال بھی کی۔ تو اس سارے معاملے میں کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو بیہائنڈ دا کرٹن ہیں، وہ بھی آنے والے دنوں میں سامنے آئیں گی کہ پنجاب سے یہ بلا مقابلہ والا سین کس طرح ہوگا، اور اس میں آصف علی زرداری نے کیا حاصل کیا نون لیگ کو اس بات پہ مطمئن کر کے کہ جناب ٹھیک ہے بلا مقابلہ ہی چلنے دیں۔ اور وہ جو خان صاحب اور ان کی پارٹی جو پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وہ کہتے ہیں لتاڑتے ہیں ان کو، لیکن یہاں پہ تو جناب ان کا پانی جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا آب زمزم ثابت ہوا، اور وہ جی بڑے آرام سے خان صاحب اینڈ کمپنی پی گئے۔ اب چلے پنجاب کی بات ہو گئی ختم، اب چلتے ہیں جو مرکز کی بات ہے۔ اصل جہاں پہ وہ فردوس شکمان صاحبہ کہہ رہی تھی نا کڑکی، تو وہ کڑکی رانا ثناء اللہ کے لیے جو لگائی ہوئی تھی نا، یعنی وہ کہہ رہے تھے کڑکی لگانی ہے، آصف علی زرداری نے کڑکی لگائی ہوئی ہے سرکار کے لیے، مرکزی سرکار کے لیے۔ آصف علی زرداری نے کڑکی لگائی ہوئی ہے قومی اسمبلی میں، اور وہ جو ہے یوسف رضا گیلانی کو جو ہے وہ سینیٹر منتخب کرا کے نہ صرف اسٹیبلشمنٹ کو اپنے مسلز دکھانا چاہتے ہیں، ان کے لیے جی بہترین یا بیسٹ چوائس بننا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ عمران خان اینڈ کمپنی کو بھی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جناب سیاست کس طرح کی جاتی ہے اور سیاست ہوتی کیا ہے۔ یہ آصف علی زرداری کا خیال ہے کہ وہ سیٹ یقینی طور پہ جیت جائیں گے۔ اس کے لیے آج 2-3 بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئیں، اور وہ ڈیولپمنٹ جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں کہ اگر یہ ڈیولپمنٹ مزید تقویت پکڑتی ہیں، ایک تو باقاعدہ طور پہ
मतलब आप ये कहें कि मामला सीधा हो गया। और एक जमात इस्लामी का और MQM का मामला भी आने वाले दिनों में देखते हैं। पीपल्स पार्टी ने बहुत बड़ी ऑफ़र करवाई है। मैं आपको बताता हूँ, एक तो जो है इधर KP में MMA के प्लेटफॉर्म से जमात इस्लामी लड़ी थी, लेकिन जमात इस्लामी को ये कहा गया कि आपको ख़वातीन की सीट देते हैं और आप इस तरह करें कि आप जो है PDM के उम्मीदवार को मरकज़ में वोट डालें, आपके MNA डालें। तो वो पहले भी हुकूमत के साथ तो वो नहीं थे, लेकिन उससे ये है कि जो पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP और मौलाना फजल रहमान के अलावा जमात इस्लामी भी आ गई जी ऑन बोर्ड, और जमात इस्लामी ने ये कहा है कि हम आपके साथ ये इत्तेहाद करते हैं। इस इत्तेहाद से बड़ी खबर, जिस चीड़ फाड़ खबर जो है ना पाकिस्तानी सियासत में, वो ये कि जनाब पीपल्स पार्टी जब MQM के पास गई और पीपल्स पार्टी ने 2 सीटें MQM को ऑफ़र कर दी इस बदले में कि साथ हैं MQM के, कि आप साथ हमें जाके वोट दें PDM के उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी को, और 2 सीटें बड़ी सीटें। और आपने ये, आपको पता है, अगर आप देखने वाले थोड़े से पीछे जाएं और वो MQM के ट्रैक रिकॉर्ड पे नज़र दौड़ाएं तो MQM जो है वो तकरीबन वो जो ऑपरेशन हुआ था उसके बाद मुशर्रफ दौर से शुरू हुई और तमाम जो भी हुकूमत आई ना उस हुकूमत में रही, तो MQM कभी घाटे का सौदा नहीं करती। इमरान खान साहब से उन्हें क्या मिलना है, जो वजारतें उन्हें मिली हुई हैं वो तो मिली हुई हैं। पोर्ट एंड शिपिंग की वो वजारत मांग रहे थे, पोर्ट एंड शिपिंग की वजारत उनको मिली नहीं, उस पर भी नाराज़गी, और फिर उन्होंने अपने दफ्तर शफ्तर खुलवाने थे। तो अगर 2 सेनेटर मिल जाते हैं तो ये एक अच्छी ऑफ़र है और बड़ी कैलकुलेट किस्म की ऑफ़र करवाई गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानब से, और इसने वज़ीर आज़म इमरान खान को और हुक्मरान जमात को टेंशन में ज़रूर डाला है कि जी अगर MQM के साथ वोट जाते हैं और वो जी तकरीबन कोई 100 और 55 के करीब वोट हैं, बाकी मिला के ANP वगैरह, इसके MMA, पीपल्स पार्टी, नून लीग, तो फिर वो 7 वोट वो जाके 163-64 पे गेम पहुंचेगी। और फिर और भी कुछ ऐसे वोट हैं 2-3 जो आज़ाद 4 लोग हैं वो आ सकते हैं। फिर उसके बाद जो ये कहा जा रहा है जनूबी पंजाब से वोट्स, और वो जो कहानी है कि जी 8 से 10 लोगों ने गिलानी साहब को कहा है कि जी आप हमें नून लीग के टिकट की यकीन दहानी करवाएं कि हमें आइंदा इंतखाब में मिलेगा तो हम आपको वोट डालते हैं, और इसका जिक्र शहबाज शरीफ से और मरियम नवाज से पीपल पार्टी की क़यादत कर चुकी है। तो ये एक टफ जो है वो मुकाबला बनता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और नज़र आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी बड़े कैलकुलेटेड किस्म की शॉट्स कह रहे हैं। एक तो उससे उनका कद जो है PDM में और बड़ा होगा, क्योंकि PDM को उन्होंने कहा कि हमने बायकॉट नहीं करना, हमने इस्तीफे नहीं देने, हमने मुकाबला करना है और मिल के मुकाबला करना है। अब अगर देखें बल्दियाती जो ज़िमनी इंतखाब हुए, ज़िमनी इंतखाब में PDM ने मिल के मुकाबला किया PTI का, और मेजर किस्म की जो है जीत मिली। पीपल पार्टी तो वहाँ पे पूरा मतलब सिंध सुकून से ले गई जो भी इंतखाबात हुए, और इवन नून लीग जाके नौशहरा से जीत गई। तो ये एक आसिफ अली जरदारी का वो जो सोच थी या वो प्लान था वो काफ़ी हद तक कामयाब नज़र आता है। लेकिन अब अगर आसिफ अली जरदारी यूसुफ रज़ा गिलानी की सीट निकाल जाते हैं तो ये एक आप ये कहें कि एक लैंडमार्क किस्म की एक डेवलपमेंट होगी, और उससे आगे आने वाले दिनों में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत मज़ीद कमज़ोर होगी। और फिर ये नहीं होगा कि जैसे 64 और 40 वाला सीन बना था कि हुकूमत के 40 होने के बावजूद जो थी वो साजिद संजरानी के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद की तहरीक थी वो नाकाम हो गई। अपोजिशन के पास 64 लोग थे लेकिन वो कामयाब नहीं करा सके। तो ये वो वाला सीन नहीं बनेगा, क्योंकि अब किसी हद तक इस्टेब्लिशमेंट भी न्यूट्रल होगी। यहाँ पे एक और बात आती है, आपके जहन में भी होगी, आपने भी सुना पड़ा होगा कि जी ये जो हफीज़ शेख है ना, ये बेसिकली तौर पे इस्टेब्लिशमेंट प्रो इस्टेब्लिशमेंट है, यानी इस्टेब्लिशमेंट इनके पीछे है या इनके करीब करीब है, इनके नज़दीक है। और जरदारी साहब के दौर में भी अगर इनको अहम मकाम मिला था या अब इनको बुला के दिया गया है तो इसमें इस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद हासिल है। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ देखें कि इसमें कोई दूसरी शक नहीं कि ये इस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं, ये उसके साथ जहांगीर खान तरीन के करीब है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन ने, मैंने पिछले व्लॉग में भी आपको बताया था कि असद उमर को मतलब आउट करने के लिए जहांगीर तरीन ने इन पे हाथ रखा था, जिस पे कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने ये भी कहा कि जनाब
नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने तौर पे कोई बयानिया तश्कील दे रहे हैं। तो मैंने बताया था कि शायद वो वॉइस ऑफ अमेरिका को जो फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू है, वो आप जल्दी भूल जाते हैं या भूल गए हैं। और वो गजनी वाला स्टाइल जो रऊफ़ क्लासा साहब ने एक बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ इस्तेमाल किया, गजनी कौम है हम जल्दी भूल जाते हैं। तो उसमें उन्होंने कहा था कि ये जो लड़ाई असद उमर की और जहांगीर तरीन की और उसके साथ शाह महमूद कुरैशी की है, इसने हमें बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तो बहरहाल खैर डेवलपमेंट बड़ी अहम आई है। और एक किला तो जो है वो आसफ अली जरदारी ने फतह कर लिया है। वो किला है जनाब अली केपी का, और जमात इस्लामी साथ मिल गई। अब वो ये चाहते हैं कि सिंध वाला किला जो है वो भी फतह करे। अब जीटीए की बात करें तो जीटीए में भी कौन है, आसफ अली जरदारी के पुराने संगी दोस्त जो हैं वो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा एंड कंपनी के ही सारे लोग हैं ना। वो फहमीदा मिर्ज़ा जो स्पीकर रही किन की, उनको तो पता है कि कल जनाब फिर मामलात ऊपर नीचे होने हैं। और ख़ान साहब वो जैसे इनकी जमात तो बिखर भी सकती है, तो सिंध में अगर आसफ अली जरदारी के साथ मामलात दोबारा दुरुस्त कर लिए जाए 2-4 वोट दे के, तो जीटीए के बारे में भी आप बिल्कुल इस मामले में ना रहिएगा। साबिक स्पीकर हैं और वज़ीर दाखिला सिंध के साबिक जो हैं उनकी जमात है, और वो कितना किस हद तक आके हेल्प करेगी। और फिर दूसरी जानब जो है वो एमक्यूएम को 2 सीटें नज़र आ रही हैं। सेनेट की 6 साल टेन्योर होता है एक बंदे का जिसने अभी सेनेटर बनना है। तो अगले आने वाले में एमक्यूएम के और लोग रिटायर हो रहे हैं, तो एमक्यूएम के लिए भी जो है वो बड़ी नाजुक सूरत हाल है। जैसे डॉक्टर आमर लियाकत ने कहा था एक प्रोग्राम में, बड़ी नाजुक सूरत हाल है। बहरहाल पत्ते बड़े ठीक खेले हैं, और हमजा शहबाज भी बाहर आ रहे हैं। और हमें इतला है, आज डेट क्या है जी, आज 27 फरवरी है, और 27 फरवरी को हम आपको बता रहे हैं कि हमजा शहबाज तो बाहर आगे जो है वो खुर्शीद शाह साहब, और उनके साथ साथ जो है शहबाज शरीफ साहब, इनका नंबर भी बाहर आने का लगने वाला है। और इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मामलात को परसेप्शन ये बना रही है कि इस्टेब्लिशमेंट पीछे हट गई है। बहरहाल आज 2 बड़े फैसले हुए, मतलब 2 बड़ी फतह हुई पीडीएम को। और देखते हैं कि ये एमक्यूएम वाला सीन जो है ये कब मैच्योर होता है, और क्या वो बोलते भी हैं, यानी खामोशी एमक्यूएम भी देखेगी ना कि अगर उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ती कुछ कहने की, और खुफिया पोलिंग होती है और वो उसमें भी वोट दे सकते हैं। अगर सादिक संजरानी के निकल सकते हैं तो यहाँ पे भी अपोजिशन के भी निकल सकते हैं। अब ये बड़ा मज़ेदार जो है वो सिलसिला बन गया है। हम इस बारे में आपको अपडेट रखेंगे, लेकिन पंजाब वाली सूरत हाल आपने देखी है, कोई किसी का भी नहीं है, सब अपने मफाद के हैं। और शिराजी को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के